हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज की मैथ्स क्लास में और आज हम करेंगे डेसिमल नंबर्स। A dot or tiny point placed between two digits of a number is called decimal point. किसी भी सपोज 5.7 तो ये डॉट क्या कहलाता है? डेसिमल। 2 डिजिट के बीच में एक डॉट लगाना डेसिमल पॉइंट कहलाता है। We use the decimal point to separate paisa from rupees. When a number contains a decimal point in it, then it is called a decimal or the decimal fraction. Here the decimal point is used to show a fraction. Thus the decimal point separate the fraction from the whole part. जो decimal से पहले ये क्या हो जाएगा? ये whole part है and this is fraction. इसको हम लिखेंगे 5 plus 7/10। तो ये क्या हो गया? ये होल पार्ट और ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। कंसीडर द नंबर 534.268. It is the decimal fraction or the simply decimal. It has two parts. The number formed by the digit on the left of the decimal point, that is 534. डेसिमल के लेफ्ट में यानी 534 is integral part, whereas the number formed by the digit on the right of the decimal point is called fraction. ये जो डेसिमल के राइट में है ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट is called fractional or decimal part. 5724. The place value of 5 is 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5000 बिकॉज 5 किस प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे। सेम वे यहाँ पे 5 की क्या है प्लेस वैल्यू? 50 बिकॉज 10th की प्लेस पे है। यहाँ पे 5 की 500 और यहाँ पे है 5। From the above discussion, we observe that when a digit 5 move one's place to the right, means right में move करती है, its value become 1/10। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे 5 था तो उसकी 5000 थी, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया तो क्या हो गई? 500, फिर 50, फिर 5, तो 1/10 हो गई इसकी वैल्यू ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। व्हेन इट मूव्स 2 प्लेस टू द राइट, इट वैल्यू बिकम 100 ऑफ इट प्रीवियस वैल्यू। लाइक यहाँ पे था तो 5000 थी, 2 प्लेस मूव किया यानी यहाँ पे आ गया तो कितनी हो गई? 50, यानी 1/100 हो गई। इफ वी विश टू कंटिन्यू मूविंग toward the right, we shall have to extend the place value chart beyond one's place by opening a place for tenths, hundreds and thousands and so on. Thus the place value table take the following shape. किस तरीके से हो जाएगी? ones, tens, hundred, thousand लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, राइट में मूव करेंगे 1 से तो tenths, THS लगाना है यानी 1/10, hundreds यानी 1/100, thousands यानी 1/1000 फ्रैक्शन में जाती है जैसे जैसे हम राइट में मूव करते हैं। इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ नंबर 47 प्लस 5/10 प्लस 3/100 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, देन 4 goes to the 10th place, 7 goes to 1st place, 5 goes to 10th place and 3 goes to 100th place as indicate below. अगर इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे? 47 ये हो जाएगा वंस, ये टेंस, तो वंस पे आ जाएगा 7, टेंस पे आ जाएगा 4, माइनस 5/10 फ्रैक्शन पार्ट है तो हम क्या लिखेंगे? टेंस, 100 है 3/100 तो लिखेंगे हंड्रेड्स। तो इस तरीके से हम डेसिमल को प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करेंगे। The number shown in the chart written as 47 dot या decimal 53. It is called a decimal fraction or the simply decimal. It is read as 47.53. Here the point is called the decimal point and it separates the whole number and the fraction part. ये क्या करता है? डेसिमल के जो लेफ्ट में है वो होल पार्ट है एंड राइट में क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट। सिमिलरली द नंबर 246 plus 3/10 plus 8/100 plus 7/1000 is written as 426.387 and read as 400
26.387. It can also be read as 426 and 308 700. Now study the following table. यहाँ पे एक टेबल दी गई, नंबर क्या है 15.2. डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको सेपरेटली रीड करते हैं. लाइक जैसे यहाँ पे था 47.53 ना कि 47.53. इसको हम रीड करेंगे 15.2, 23.12, 0.94, 228.04. The decimal may contain a whole number part and a decimal part as shown below. In 12.74, the whole number part is 12 and the decimal part is 74 या 74. In 6.802, the whole number part is 6 and the decimal part is 802. In 0.85, the whole number part is 0 and the decimal part is 85. In 42.0, the whole number part is 42 and decimal part is 0. The decimal consisting of only one part, either decimal part or whole number part, can be written by making use 0 in whole or decimal part. अगर whole part है और decimal नहीं है तो decimal की जगह 0 लिख देंगे, अगर whole part नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख देंगे. 26 can be written as 26.0 means इसमें whole part है, decimal part नहीं है. 0.8 can be written as 0.8 means whole part नहीं है, only decimal part है. 0.307 can be written as 0.307 etc. Next is decimal place. The number of digit contained in a decimal given the number of its decimal places. For example, 5.64 has 2 decimal place and 46.175 has 3 decimal place. Means decimal के बाद कितनी digit है, यहाँ पे 2 है तो 2 decimal place हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 decimal place हो जाएगा. Next is addition and subtraction of decimal. डेसिमल नंबर में किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो समझेंगे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल इज एज सिंपल एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर. द ओनली डिफरेंस इज दैट वी इंश्योर अलाइनिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर बिफोर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमेशा जो भी डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल ही आएगा. फॉर दिस वी कीप द डेसिमल पॉइंट इन द सेम कॉलम. Before adding and subtracting the decimal, we convert them into like decimal if they are not. Study the following example to make the concept more clear. Add 35.6, 0.59 and 52.406. अब आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 3 है. तो हम क्या करेंगे, तीनों को सेम डेसिमल प्लेस में चेंज करेंगे. कैसे? कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल टू बिकम 35.600. मैक्सिमम कितना है 3 है तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया 0.590 और 52.406. अब हम इसको ऐड करेंगे कॉलम में. हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला ही आएगा 35.600. नेक्स्ट इज 0.0, उसके बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 590, 52.406. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे ऐड करना. 0 + 0 + 6 कितना हो जाएगा 6. 0 + 9 + 0 हो जाएगा 9. 6 + 5 + 4 15. 5 यहाँ आ जाएगा 1 कैरी ओवर. 5 + 1 6 + 2 8. 3 + 5 8. तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 88.596. ये हमारा जो है इसका सम हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें डेसिमल्स नंबर को ऐड करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कैरेट डिजिट फ्रॉम द 10th प्लेस मे गो बियॉन्ड द डेसिमल पॉइंट टू रीच द 1st प्लेस. तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड कर लेंगे. ये एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम ऑन डेसिमल्स. लेट अस स्टडी फॉलोइंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 13.26 एंड 24.75 फ्रॉम 52.63. हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे. इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें भी 2, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक डेसिमल्स हैं. फर्स्ट वी ऑल फाइंड द सम ऑफ 13.26 एंड 24.75. ऐड करेंगे. 6 + 5 11, 1 आ जाएगा. 1 कैरी ओवर. 2 + 1 3 + 7 10, 0 यहाँ, 1 कैरी ओवर. 5 + 3 8, 1 + 2 3. तो कितना आ गया, जो सम आ गया 38.01. अब क्या करना है, इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 52.63 में से. तो क्या करेंगे, 52.63 माइनस 38.01. 3 - 1 2, 6 - 0 6, 2 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4. 12 - 8 4, 4 - 3 1. तो डिफरेंस कितना आ गया, 14.62. Hence the required decimal is 14.62. ये डेसिमल से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने की थी, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो समझेंगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो समझेंगे. To multiply a decimal by a whole number, we take the following step. Step 1. Multiply the decimal without the decimal point by a whole number. Next step, place the decimal point so as to obtain as many decimal place in the product as there are in the decimal number. Let us understand it through following example. Example लेते हैं. Multiply 4.92 by 8. 4.92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल को हटा दिया. यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हमने क्या किया, डेसिमल को हटा दिया. सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं. 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 × 2 = 16, 1 कैरी ओवर. 9 × 8 = 72 + 1 73 और 7 कैरी ओवर हो जाएगा. 8 × 4 = 32 + 7 39. अब हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 3936. अब हमें पता है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसमें 2 डिजिट, यानी हमारा जो प्रोडक्ट था वो ये है, तो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. तो ये हो जाएगा 39.36. तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100,000 एटसेट्रा. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. मल्टीप्लाई 8.147 इंटू 10. सेम वे मल्टीप्लाई करना है. 8.147 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि 10 से, डेसिमल को नहीं कंसीडर करेंगे. तो ये आ जाएगा 8147 और राइट हैंड साइड पे एक 0 लगा देंगे. अब देखिए कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 81.47. सेम वे 100 से मल्टीप्लाई करना है. 8147 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया 1 2 3. तो ये आ जाएगा 814.7. और अगर 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8147.000, यानी 8147. What you can conclude from the above example? We conclude that to multiply a decimal by 10, we simply shift the decimal point one place to the right. हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को राइट में एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज एक डिजिट बढ़ गई है, 10 से किया तो एक 0 बढ़ गया, एक डिजिट बढ़ गई है, तो
राइट हैंड साइड पे एक प्लेस शिफ्ट कर दिया है. टू मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100 वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस टू द राइट. To multiply the decimal by 1000, we simply shift the decimal point 3 place to the right. Remember, any number of 0 after the last significant non-zero digit in the decimal part of a given number does not change the value of the number. For example, 4.900 that is equals to 4.90 और 4.9. देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो अगर हम यहाँ पे कितने भी ज़ीरो ऐड कर दें, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी. एंड 0.6 हम 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.600 भी लिख सकते हैं. बट इन 5.006 द फर्स्ट ज़ीरो इज एट 10th प्लेस, द सेकेंड ज़ीरो इज एट 100th प्लेस. हेयर आफ्टर 2 zeros देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट 6. सो These zeros are meaningful. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चेंज है, डेसिमल के बाद ज़ीरो लग रहा है, उसके बाद 6 है. तो यहाँ पे ज़ीरो किस प्लेस पे है, टेंथ की, ये हंड्रेड्स, और उसके बाद 6 है थाउजेंड्स की प्लेस पे. तो इस ज़ीरो की सिग्निफिकेंस होगी, इसकी मीनिंग होगी. बट अगर डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट नंबर है, उसके बाद ज़ीरो लगा सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है 006, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक और ज़ीरो अगर ये लिख दें 5.0006, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. यहाँ पे हम ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते, बट हाँ अगर हम यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल. लुक एट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. 0.14 इंटू 0.5. डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे. 0.14 इंटू 0.5, हमने डेसिमल हटाया 0.14, डेसिमल हटाएंगे तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं उतने ही नीचे ज़ीरो लगा देते हैं. तो ये हो जाएगा 14/100. यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, 1 डिजिट, तो 5/10. माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 70/1000. 14 5 70. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है हमें. 14 5 70, 100 इंटू 10,000. अब देखिए 3 ज़ीरो है, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 70/1000. तो हमें 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से ज़ीरो लगाना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 70 हमारा ऑलरेडी था, ये 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे और डेसिमल लगाएंगे. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.007. देखिए 0.14, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा. ये हो जाएगा 0.007. तो इस तरीके से हम 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.4. तो ये हो जाएगा 27/100 इंटू 4/10. तो 27 इंटू 4, 100 इंटू 10, यानी 108/1000. 3 ज़ीरो है, मीन्स 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 0.108. तो इस तरीके से हमें 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज नाउ स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली. एग्जाम्पल दे रखा है हमें, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन प्रोडक्ट 1.6 इंटू 0.52. हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट क्या है हमारा 0.832. मल्टीप्लिकेंट क्या है हमारा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मल्टीप्लायर में 1 डिजिट के बाद. प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा. सेम वे यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा. फ्रॉम द अबव टेबल we observe that each of the example the product contain as many decimal place as there are in the multiplicand and multiplied together.
Thus, to multiply two decimal, we take the following step. Step 1, multiply the multiplicand by the multiplier just like the whole number. Like जैसे simply multiply करते हैं वैसे ही करना है, decimal को consider नहीं करना है. Next step, in the product, place the decimal point so that the number of decimal places in the product is equal to the sum of decimal place in multiplier and multiplicand. मीन्स मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड में जितने टोटल डेसिमल थे वो हम प्रोडक्ट में लगा देंगे. द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई 27.3 बाय 0.46. हमें क्या करना है, 27.3 को 0.46 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम सिंपल वे में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे. तो ये हो जाएगा 273 मल्टीप्लाई बाय 46. तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 12,558. अब देखिए मल्टीप्लिकेंड में कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1, और मल्टीप्लायर में था 2, तो टोटल हो गया 3. तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 12.558. So we put the decimal point in the product so as to have 3 decimal places from the right. Thus 27.3 into 0.46 that is equals to 12.558. तो इस तरीके से अगर दो डेसिमल नंबर हैं उनको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जितना भी टोटल डिजिट के बाद डेसिमल है वो हम प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था, अब हम डिवीजन करेंगे. डिवीजन ऑफ द डेसिमल बाय अ होल नंबर. डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं वो समझेंगे. टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर वी टेक द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप, परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर. सेम वे हम क्या करेंगे, डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल टेक इट एज अ होल नंबर. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हेन द डिवीजन ऑफ द होल नंबर पार्ट ऑफ डिविडेंड इज कंप्लीट, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एंड प्रोसेस विद द डिवीजन एज इन केस ऑफ होल नंबर. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल. डिवाइड 25.2 बाय 6. हमें क्या करना है, 25.2 को 6 से डिवाइड करना है. हमने क्या किया, 25.2 लिख दिया, 6 से डिवाइड. फर्स्ट क्या नंबर है, 2 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 6, तो हम ये दो नंबर लेंगे. 25, 6 4 ज़ा 24. सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया. अब देखिए उसके बाद डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे, तो 4 पॉइंट. इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 0, ये हमारा रिमाइंडर. सो 25.2 डिवाइडेड बाय 6 इज 4.2. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, डिवाइड 7.164 बाय 9. हमें करना है 7.164 को 9 से डिवाइड. देखिए डेसिमल से पहले क्या आ रहा है, 7, तो 7 क्या है, 9 से छोटा है. 7 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और क्वेश्चन में 0 लिख देंगे. इसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे. अब हम दोनों नंबर को एक साथ नोट डाउन करेंगे, 7 1 यानी 71. अंडरस्टैंड. अब 9 7 ज़ा हो जाएगा 63. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 86. 9 9 ज़ा 81. सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया. नेक्स्ट नंबर 54. 9 6 ज़ा 54. सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया. सो 7.164 divided by 9, that is equals to 0.796. What do you conclude from the example? We conclude that when the whole number part of dividend is less than the divisor. यहाँ पे जो whole number part था वो 7 था, वो जो divisor है उससे छोटा है. We first place a 0 in the ones place in the quotient followed by the decimal point. Then we divide as usual by forming the greater number with the digit of the dividend. तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे. सेम वे ये एग्जाम्पल करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000. Study the following example. Find the quotient.
63.5 को 10 से डिवाइड करना है। 63.50 लिख दिया हमने, 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 6 छोटा है तो 63 लेंगे हम, 10 6 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ गया, 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद क्या डेसिमल, तो हमने क्वेश्चन में डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 35, 10 3 30, सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 50 हो गया, 10 5 50, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 6.35। सेम वे अगर 100 से डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ पे जो होल पार्ट है वो हमारा डिवाइजर से क्या है, कम है या लेस है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा देंगे क्वेश्चन पे और डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद इन तीनों नंबर को एक साथ लेंगे। 100 8 800, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 47। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 470, 100 4 400, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 700, 100 7 700, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.847। What do you conclude from the example? We conclude that to divide a decimal by 1000, we simply shift the decimal point 3 place to the left. देखिए जैसे कि 63.5 को हमको डिवाइड करना था 10 से। अब देखिए अगर 10 से डिवाइड करना है तो हम डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6.35। अगर 100 से करना है तो 2 प्लेस लेफ्ट, यानी 0.635। इस तरीके से हमें करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। अब हमें डेसिमल को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अ डेसिमल वी टेक द फॉलो स्टेप। स्टेप 1, वी कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू अ होल नंबर। जो डिवाइजर है यानी जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय 10, 100 और 1000 और एटसेट्रा depending upon the number of decimal place in the divisor. Step 2 क्या होगा? Now we divide the new dividend by the whole number as discussed earlier. Example given below will make the idea more clear. Example लेते हैं, divide 8.5 by 0.17. 8.5 को हमें 0.17 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 8.5 अपॉन 0.17 लिखा हमने, 0.5 अपॉन 0.17। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डिजिट के बाद है डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। तो हमने क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए इसको 100 से, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या हो गया 850 अपॉन 17। अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 850 को 17 से डिवाइड किया तो 17 5 85, सब्ट्रैक्ट किया 0, नेक्स्ट 0 नोट डाउन किया और यहाँ पे 0 आ गया तो 50 आ गया। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, पहले उसको होल नंबर में चेंज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। अब होल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे वो समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड 75 बाय 0.5। सोल्यूशन क्या होगा, हियर द डिविडेंड इज अ होल नंबर। डिविडेंड क्या है हमारा, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो एक होल नंबर है। एंड द डिवाइजर इज 1 प्लेस डेसिमल। डिवाइजर क्या है हमारा, डेसिमल नंबर है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट वी कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू होल नंबर एज शोन बिलो। हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। कैसे, 75 अपॉन 0.5 है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि ओनली नीचे, बिकॉज उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। 750 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। तो 75 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या हो जाएगा 150। सो दिस वे
हम एक होल नंबर को डेसिमल नंबर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ होल नंबर। अब एक होल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं वो समझेंगे। डिवाइड 3 बाय 12। अब देखिए 3 को 12 से डिवाइड करना है। 3 क्या है, 12 से छोटा है, तो हम कैसे करेंगे, 3.00 हमने क्या लिख दिया 3.00 डेसिमल लगा के। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 12, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में 0 लिखेंगे और डेसिमल लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा 30। अब 30 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 60, 12 5 ज़ा 60। सो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा 0.25। तो इस तरीके से हम होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बट इस केस में क्या है, जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे डिवाइजर से छोटा है, तो उस केस में हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।